সাংবাদিক বন্ধু এবং বোনদের প্রতি আমার গলাটা একটু ভেঙেছে, সাধারণ কারণে মনে হচ্ছে যারা ব্যক্তি বলছে, তার জন্য আমি মাফি চাইছি। তারপরে গলা বন্ধুই ছিল, আজকে খুলে গেছে। বন্ধুরা, আজকে আমাদের মধ্যে আমাদের সবার পরিচিত শ্রী বিজয় দেববর্মা, উনি IAS রিটায়ার্ড অফিসার, জনজাতি নেতৃত্ব, TMC এসটি মোর্চা স্টেট প্রেসিডেন্ট। তার সঙ্গে সঙ্গে উনি TMC স্টেটের ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব রয়েছে। তার সঙ্গে বিপ্লব কর আমার বাদিকে বসে আছেন, সুরঞ্জিত কর, উনি অল ইন্ডিয়া সেক্রেটারি আছেন INTTUC, और त्रिपुरा स्टेट प्रेसिडेंट INTTUC মানে তৃণমূল কংগ্রেসের যে ট্রেড ইউনিয়ন আছে তার উনি স্টেট প্রেসিডেন্ট আছেন। সঙ্গে আছেন ওনার সুভাষ বণিক, উনি INTTUC যে অ্যাডভাইজারি বডি আছে তার উনি কনভেনার আছেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে বসে আছেন 400-এর উপরে জাতি, উপজাতি, জনজাতি থেকে আসা বড় মাত্রা আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। আমি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির তরফ থেকে সবাইকে সাধুবাদ, শুভেচ্ছা জানাই। নরেন্দ্র ভাই মোদী এবং অমিত ভাই শাহর তরফ থেকে সবাইকে সাধুবাদ জানাই যে ক্রমাগত ভারতীয় জনতা পার্টিতে জনলহর যে চলছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে, পরিবর্তনের যে লহর চলছে সেটা ক্রমাগত অব্যাহত রয়েছে। এবং আজকে ওনাদের নেতৃত্বে 400 উপরে সংখ্যায় কার্যকর্তা এবং নেতৃত্ববৃন্দ আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছে। এইভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিটি দিনে হাজারো কার্যকর্তা বিভিন্ন পার্টি থেকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছে। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে কালকে আমাদের রাজ্যের নির্বাচনী প্রভারী আসামের মন্ত্রী নেডা চেয়ারম্যান ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং নর্থ ইস্ট সহ জম্মু কাশ্মীরের প্রভারী এবং ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী রাম মাধবজি ত্রিপুরাতে আসবেন, আগরতলাতে। এবং কালকের মধ্যেই ওনারা আসার পর আমাদের সিট শেয়ারিং এবং অফিসিয়ালি IPFTর সঙ্গে আমাদের জোট সেই বিষয়ে ঘোষণা হবে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা জয়েন্ট স্টেটমেন্ট আপনাদের সামনে জারি করব। আগামী নির্বাচনে আমরা কি ধরনের কর্মসূচি নেব এবং আমাদের ভূমিকা কি থাকবে সেই বিষয়ে জয়েন্ট স্টেটমেন্ট, সেখানে NC দেববর্মা এবং তার পার্টির নেতৃত্ব এবং ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন। আর কালকে সেই বিষয়টা আপনাদেরকে সময় জানিয়ে দেওয়া হবে পরবর্তী সময়। তার সঙ্গে সঙ্গে 31 জানুয়ারি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনার দুটি জনসভার বিষয়ে আমরা আগে সূচনা আপনাদের দিয়েছিলাম, কিন্তু নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর 31 তারিখ পর্যন্ত নমিনেশন দাখিলের দিন রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে সেটা সম্ভবপর নয়। তার জন্য ফেব্রুয়ারির ফার্স্ট উইকে সম্ভবত ডেট তৈরি হবে। আমরা কাল রাম মাধবজি আসার পর আপনাদেরকে প্রধানমন্ত্রী 3 বা 4টি র্যালি ত্রিপুরাতে হবে, কবে হবে সেগুলো আপনাদেরকে ডিটেলস জানিয়ে দেওয়া হবে। আর আমি একবার সুনীলজিকে বলবো, আজকে উনি ইলেকশন কমিশনার যেখানে এসছেন, দায়িত্বে আছেন নবীনজি, ওনার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। আপনাদের সামনে সেই বিষয়গুলি রাখার জন্য আমি সুনীলকে নিবেদন করি। पत्रकार बंधुओं, आप लोग जानते हैं इस राज्य में जो चुनाव होते हैं
उसमें जो लेफ्ट फ्रंट के जो लोग हैं ये राज्य सरकार के अंदर कितने हद तक पेनिट्रेट किए होते हैं, और अब तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि चुनाव विपक्ष और सरकार के बीच में हुआ है, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में नहीं हुआ है। तो हमारी जो चिंता इस बात की जो थी वो हमने बार बार इलेक्शन कमीशन को दिल्ली में 2 बार मुलाकात करके, यहाँ पर मुलाकात करके हमने बताई थी। आज भी मैं और हमारे इलेक्शन सेल के जो एक सह इंचार्ज है बलय गोस्वामी जी, हम लोगों ने जाकर यहाँ पर जो अभी आए हैं उनके साथ रजनीकांत जी और नवीन कुमार जी सभी बैठे हुए थे, उनके सामने हमने हमारा पक्ष रखा। उसमें जो छोटी छोटी चीजों के माध्यम से जो रिगिंग होता है यहाँ पर, उसके बारे में हमने उनको कहा और इसके बारे में हमने इंश्योर किया कि इस बार टेक्नोलॉजी और बदले हुए नियमों के माध्यम से इस प्रकार का कोई भी धांधली या रिगिंग चुनाव के समय नहीं होगा। कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, उसमें बूथ के ऑफिसेस हटाने के बारे में उन्होंने बात बताई। तो मैंने कहा भैया बूथ के ऑफिसेस हटेंगे सरकारी प्रॉपर्टी से तो सबके हटने चाहिए, ये सिर्फ बीजेपी का मुद्दा नहीं है, किसी का भी नहीं होना चाहिए। पूरे देश भर में रूल है कि झंडे जो है वो सरकारी जमीन पर कहीं भी नहीं लगते हैं इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद, और वो जो समर्थक है उनके परिवार के या दुकान के जिनकी अनुमति है, परमिशन है, वही उस झंडे को लगा सकते हैं। तो उसके बारे में भी उन्होंने, वैसे तो 48 घंटे में सभी को झंडे हटाने की बात उन्होंने कही है, लेकिन मैंने कहा कि उसके बारे में यहाँ राज्य सरकार का एक अलग कानून है, तो उस कानून और सेंट्रल जो इलेक्शन कमीशन की संभावना, इसको देखकर वो हमें 1-2 दिन में इसका जवाब देंगे, ऐसे उन्होंने कहा। जो अधिकारी है, रिकॉर्ड रहा है कि ये वामफ्रंट सरकार के लिए काम करते हैं, पास्ट भी हमने उनको दी और हमने कहा कि इनको इलेक्शन प्रोसीजर में का काम करेंगे। जो जबरदस्ती जो डोनेशन लिया गया है सीपीएम पार्टी की तरफ से, ये राज्य सरकार के कर्मचारियों के पास से, उसके खिलाफ एफआईआर तो हमने किया भी है और उसके खिलाफ कमीशन से मांग की, और ये भी बताया कि अगर सीपीएम पार्टी कहते हैं कि उन्होंने जबरदस्ती नहीं की है, उन्होंने दिन, तो फिर इसका मतलब वो सीपीएम पार्टी के समर्थक है और इसलिए उनको इलेक्शन प्रोसीजर से हटाना चाहिए, क्योंकि जो खुद चलाकर डोनेशन देता है, अगर वो स्व खुशी से देता है, इसका मतलब वो पार्टी का सपोर्टर है, तो वो निष्पक्ष चुनाव का, इसलिए उसको हटाना, इसका भी इलेक्शन कमीशन ने आज ऊपर कार्रवाई वो करेंगे। ये पुलिस टीएसआर का जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के बारे में हमने इस बार, जिसको पोस्टल बैलेट कहते हैं, वो अभी वो पोस्टल बैलेट सिर्फ नाम है, लेकिन ये चुनाव भी जो है अन्य चुनावों की तरह ही होगा, और उसको भी वहां पर सभी पॉलिटिकल पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट्स वहां पर बैठे हुए होंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर्स होंगे, उसका वीडियोग्राफी होगा, और इसके बारे में भी उन्होंने हमें इंश्योर किया कि इसमें भी कोई धांधली नहीं होगी। राज्यसभा सांसद सीपीएम की झरना दास वैद्य ने जो बयान दिया था, उसके बारे में हमने उनको लिखित कंप्लेंट दी थी और हमने उनको कहा था कि इनको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने खुलेआम धमकी दी है। इनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है, इसके बारे में मैंने उनसे सवाल पूछा, तब उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर आपको जरूर आपको जवाब देंगे। अभी उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं यहाँ के जो केबल चैनल्स है उनको भी मैं आज अनुरोध करूंगा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि कोई भी राज्य सरकार की एडवर्टाइजमेंट ना चलाए। कोड ऑफ कंडक्ट चालू हो चुका है, और अगर गलती से भी कोई राज्य सरकार की एडवर्टाइजमेंट चलाता है तो उस चैनल को नियमानुसार चुनाव खत्म होने तक बंद किया जाएगा, ये नियम है। और कल इस तरह से कुछ चैनल पर चल रहा था, तो मैंने उसको जब बताया, तब इलेक्शन ने 2 जगह पर जो बहुत भयंकर मारपीट की घटनाएं हुई है, कमलपुर में हुआ है और बिलोदिया में हुआ है, दोनों जगह पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के
कार्यकर्ताओं को बहुत बुरी तरह से मारा है। अब हाथापाई में एक आध दूसरा उनका भी लगा होगा, वो तो आत्मरक्षा में हो ही जाता है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। तो हमने ऐसे रिक्वेस्ट किया है कि जहां ये घटना घटी है वहां पर तुरंत पैरामिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च वगैरह होना चाहिए। लोगों के अंदर विश्वास आना चाहिए कि इस प्रकार की गुंडागर्दी इलेक्शन कमीशन चलने देने वाला नहीं है। इलेक्शन प्रोसीजर के समय जो अलग अलग प्रकार से ये लोग रिगिंग करते हैं, एक एक छोटी छोटी बात हमने उनके ध्यान में लाकर दी और इंश्योर किया कि ये होगा नहीं। और उसमें कई सारी बातें थी, जैसे लाइन में खड़े रहे हुए लोग हैं तो उनको बार बार कोई आकर धमका कर जाता है, लाइन से घूमता रहता है, एक व्यक्ति बार बार घूमते रहता है, दिन भर उनका धंधा चलता है, ऐसे ऐसे उंगली दिखाते घूमते हैं। तो ऐसी उंगलियां इस बार नहीं उठेगी, ये हम लोगों ने इंश्योर किया है, क्योंकि सारी 100% वीडियोग्राफी होगी। बाकी राज्यों में 10% वेबकास्टिंग या वीडियोग्राफी होती है, लेकिन स्पेशल केस करके त्रिपुरा कंसीडर किया है 100% वेबकास्टिंग होगा इस बार। हर पोलिंग बूथ में क्या चल रहा है ये वेबकास्टिंग के माध्यम से सेंट्रल इलेक्शन कमीशन उसको देख सकेगा, तो इस प्रकार की धांधली कोई नहीं कर पाएगा। फर्जी वोटिंग के बारे में एक व्यक्ति 2-2 बार वोट देता है और प्रोसीडिंग ऑफिसर वहां जो लोग बैठे हुए रहते हैं वो उसके नजरअंदाज करते हैं। तो इसलिए ये भी बात हुई है कि जो लोग इलेक्शन के लाइन में खड़े रहेंगे वोटिंग के, तो इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग उनके वोटर आईडी भी चेक करेंगे, लाइन में खड़े हुए लोगों को वही व्यक्ति है कि नहीं चेक करेगा, जरा उनकी उंगलियां भी चेक करेंगे, कहीं जरा हाथ लंबा तो नहीं हो रहा है किसी का, इसकी भी पहले से वो इंश्योर करेंगे। ये भी बातें हुई है। पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह पोलिंग बूथ के पास तो रहते हैं, लेकिन धमकाने का काम चलता है गलियों के अंदर। तो इसलिए हमने उनको कहा कि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उन्होंने पेट्रोलिंग करते रहना चाहिए गांव के अंदर, गलियों के अंदर भी, ताकि जनता का हौसला बढ़ेगा और वो लोग वोटिंग के लिए खुलकर बाहर आएंगे। और ये सारी बातों में हमें काफी पॉजिटिव रिस्पांस इलेक्शन कमीशन से मिला। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार इलेक्शंस निष्पक्ष होंगे और जहां भी थोड़ी बहुत गलती हमारे नजर आएगी तो हम तुरंत लिखित उसकी कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन के पास देंगे और हम ये देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। और बहुत सारी छोटी मोटी बातें हो गई, उन सब डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। जो मोटी मोटी जो बातें मैंने की है उसके बारे में मैंने आप सबको जानकारी बताई। सुनील जी, आपने कहा है कि कुछ अधिकारी के खिलाफ आपने इसी में कंप्लेंट किया है। कितने अधिकारी होंगे, क्या नाम होगा? हम नाम उनको हमने दिए हुए। कितने अधिकारी? लगभग 7 अधिकारियों के नाम हमने दिए हैं। किस रैंक के हो? सभी प्रकार के हैं, पीसीएस से लेकर नीचे तक सभी प्रकार के हैं। और एफआईआर किसके खिलाफ? 7 एफआईआर वो जो डोनेशन के बारे में आपने एफआईआर कर दिया किसके खिलाफ? विजेंद्र के खिलाफ। उस दिन हेमंत शर्मा ने बोला कि विजेंद्र के खिलाफ नहीं, ऐसा है कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ना कि ये पार्टी के ये है, समर्थक है। तो इसमें एफआईआर की जो बात है, ये जबरदस्ती जिन्होंने डोनेशन लिया है, जो सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी ये बताना चाहते हैं कि हमसे जबरदस्ती डोनेशन लिया गया है, वो लोग एफआईआर करेंगे। जिन्होंने लिया है उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को पत्र देंगे कि इसके ऊपर उन्होंने ये कार्रवाई करनी चाहिए। जिन्होंने अपने मर्जी से दिया हुआ है उनको इलेक्शन प्रोसीजर से हटाना चाहिए, और जिन्होंने मर्जी से नहीं दिया है उनके वो लोग जाकर एफआईआर करेंगे कि हमसे जबरदस्ती लिया है। কালকে রাম মাধবজি আর হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি বলছেন বৈঠকের উপর কটার সময় আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন আপনারা? বললেন কি আগামী কালকে निकाले বিকেল কটা? 4টা 5টা 6টা? वो आपको इसमें से ही कोई होगा, इसमें से ही कोई होगा। लेकिन वो तो 10 मिनट पहले हम लोग मालूम होता है कि कौन टाइम में पेश होगा। अगर माहौल बहुत गर्म है ना, हम लोगों की बहुत चीजें 10 मिनट पहले ही पता चल जाती है।
लेकिन हम तो जुड़ हो गया हमको आपकी खास व्यवस्था करेंगे। वो कल के आदरणीय माननीय राम माधव जी और हेमंतदा আসবেন যখন প্রেস কনফারেন্স করবেন তখন হেমন্তদাকে আর রাম মাধবজিকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা। ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরাতে মানুষের এই ইলেকশন বারবার আমরা বলছি শুধু ভারতীয় জনতা পার্টির ইলেকশন নয়, মানুষের যে একটা নতুন সোর্স, নতুন জীবনযাত্রা, নতুন দিশা নিয়ে চলার লড়াই, নিশ্চিত ভারতীয় জনতা পার্টি সেদিকে নজর রয়েছে প্রদেশ কমিটি। সার্বিকভাবে ত্রিপুরার উন্নয়ন, কল্যাণ আর ইলেকশন সবগুলো সামনে রেখে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে কালকে আপনাদের সামনে সবকিছু পেশ করে এইসব বিষয়গুলো অলরেডি ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং রাম মাধবজি অবগত আছেন। নিশ্চিত আজকে মাত্র একটা রাত আপনার একটু সাম্রাজ্য থাকুন, কালকে বিকেলে শান্তি মানে একটু কবে টাকা ঘোষণা হতে পারে ও কালকে ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন। না আপনার কাছে কোনো কবে টাকা ঘোষণা হতে আমার পারে? কাছে ইন্টিমেশন আসতেই 10 মিনিটের মধ্যে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আপনি সবই জানেন, বলবেন না আগে। আচ্ছা, আমি এবার বিপ্লব করকে বলবো যে আইএনটিটি করার জন্য কেন नेटवर्क के बारे में आपने कहा था, तो पेपर और वेबसाइट में जो होते हैं उसका कुछ नहीं, न्यूज़पेपर में केंद्र या राज्य सरकार के अभी कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आ सकती, तो आने से वो न्यूज़पेपर को भी बंद करना पड़ेगा चुनाव खत्म होने तक। जो नियम के अनुसार है वो सारा नियम के अनुसार। সবার জন্য করা হবে। वेबसाइट पर भी अगर सरकार का आता है त्रिपुरा स्पेसिफिक, तो ऐसा मतलब गुजरात में कोई चीज हो रही है, कोई प्लांट का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जा रहे, तो वो सब इधर लागू नहीं हुआ। त्रिपुरा संबंधित कोई भी चीज, त्रिपुरा मेघालय नागालैंड संबंधित केंद्र सरकार की कोई भी चीज का ऐलान, एडवर्टाइजमेंट ये नहीं होगा। जैसे वैसे राज्य सरकार का भी वेब पर होगा तो वेब को बंद करना पड़ेगा, चैनल को बंद करना पड़ेगा। আচ্ছা বিজয় বাবু, আপনি তো একবার এসেছিলেন বিজেপিতে, আবার চলে গেলেন, আবার আসলেন, কি ব্যাপার? উনি যেদিন এসেছিলেন তো আমি ওনার হাতে ঝান্ডা দিয়েছি আজকে 3 বছর। ও বিজয়দা যখন এসেছিলেন তখন একলা যে ওনাকে স্বাগত করেছেন, এখন বিজয়দা নিয়ে এসেছেন, লাভ হয়েছে আমাদের। নমস্কার, বন্ধুদেরকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা। আজকের এই যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি বিপ্লব দেব মহাশয়, উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রভারী সুনীল বেদরজি, উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টি, একজন হচ্ছেন জিতেন সরকার মহাশয়, কৃষ্ণদন দাস এবং অন্যান্য বিজেপি নেতৃবৃন্দ। আমার সাথে যারা আজকে যোগদান করেছেন তার মধ্যে নেতৃত্বের মধ্যে আছেন আইএস প্রাক্তন সম্পাদক হিসেবে ছিলাম এবং রাজ্যে আইএনটিটিইউসির গত 5 বছর যাবত তৃণমূল কংগ্রেসের, আমার সাথে আইএনটিটিইউসির উপদেষ্টা মণ্ডলীর কনভেনার এবং আমাদের যতগুলো আইএনটিটিইউসির উইং নিয়ে আমরা যোগদান করেছি। এর মাধ্যমে জানিয়ে দিতে চাই ওনাদের যারা জয়েন করেছি আজকে, আমাদের প্রত্যেকেরই আদর্শ নীতি হচ্ছে এই রাজ্যের সিপিএমকে উৎখাত করা। এটার জন্য যদি আমাদের করতে হয় বা অন্যান্য দল করতে হয়, আমরা সেখানে যেতে তৈরি। এই রাজ্যের এই 25 বছর, তার মধ্যে বাদ দিলে আগের 10 বছর, টোটাল 35 বছর এই রাজ্যের শাসক দল বামফ্রন্ট সরকার, শ্রমিক বিরোধী সরকার, শুধু তাই নয় প্রত্যেকটি অংশের মানুষ আজকে বঞ্চিত, নিপীড়িত। আমরা কোন প্রলোভন বিজেপি ক্ষমতায় চলে আসছে না আসছে সেটা গণদেবতারা বলবেন। আমাদের যোগদান করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই, যে 2018 নির্বাচন এই রাজ্যে পরিবর্তনের একটা হাওয়া বইছে, সে হাওয়াটাকে আরো মজবুত করার স্বার্থে এবং তৃণমূল বিগত গত 5 বছর ধরে যতটুকু পেরেছি হবে না, কারণ সীমাবদ্ধ। নিয়ে খোলাখুলি বলতে চাই, আমি সামনে আছি বলে প্রশংসা করছি তা নয়। আমি সব থেকে বেশি
যে উনি কি মহারাষ্ট্রের মতো জায়গায় থেকে বিলাসবহুল জীবনযাপন ছেড়ে দিয়ে এই ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরায় এসে উনি আজকে 3 বছর ধরে এখানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, মানুষের সমস্যাগুলো উনি বুঝতে পারছেন। আমি মনে করি যে যে দলগুলো যারা আজকে দিল্লির বেসের উপর নির্ভরশীল হতে হয়, কলকাতার উপর নির্ভরশীল হতে হয়, যতক্ষণ না ওখানে নেতৃবৃন্দ ডাইরেক্ট যোগাযোগ ত্রিপুরায় থেকে করা না যায় সেই দল কোনোদিন ডেভেলপ হয় না। সেটা প্রমাণিত করে দিয়েছে সুনীল দেবদর্জি। তার জন্য ওনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমার সংগঠন যেটা ছেড়ে দিয়ে আমরা আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে এসেছি, আমাদের তরফ থেকে ওনাকে ধন্যবাদ জানাই যে উনি ওনার বিলাসবহুল জীবনযাপন বা নিজের সংসার পরিবার ছেড়ে দিয়ে আজকে ওনার যারা আত্মীয় স্বজন আছে পরিজন ছেড়ে দিয়ে আছে ত্রিপুরা 3 বছর ধরে উনি পড়ে আছে। আর আমি আমাদের যারা এখন বর্তমান নেতৃবৃন্দ আছেন আমি ওনাদের কাছে রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ সভাপতি এবং প্রভারী ওনার সবার কাছে আমার একটাই অনুরোধ থাকবে, দল যেখানে আমাকে জায়গা দেবে যেখানে কাজ করতে বলবে আমার পদে আমি বিশ্বাসী না, আমার উদ্দেশ্য একটাই এই রাজ্যে সিপিএমকে উৎখাত করা। দল যখন যেখানে যে দায়িত্ব দেবে আমরা সঠিকভাবে সেভাবে কাজ করার থাকবো এবং এই রাজ্যে সিপিএমকে উৎখাত করার চেষ্টায় থাকবো।